مسیحا کے مبارک ترین نام میں آپ تمام سامعین و ناظرین، مسیح یسوع میں میرے بھائی اور بہنوں، آپ سبوں کی خدمت میں آج شام سلام عرض کرتا ہوں، اور خداوند کی تعریف ہو کہ آج ایک اور موقع بطور غنیمت خداوند نے میری اور آپ کی زندگی میں بخشا ہے بانس کے طور پر، تاکہ ایک بار پھر ہم خداوند کے اس زندگی بخش کلام کو جو اس کے منہ کی باتیں ہیں باہم مل کر سیکھنے والے ہوں، اور آج بھی خداوند اپنے اس زندگی بخش کلام کے وسیلہ سے جیسے ماضی رفتہ میں برکت بخشتا رہا آج بھی برکت بخشے گا۔ خداوند یسوع مسیح جو عرش عظیم سے اس فرش پر تشریف لاتے ہیں، اس سب کچھ کے پیچھے بہت سارے مقاصد تھے، اور ان میں سب سے بڑا مقصد تو یہ کہ میرے اور آپ کے اور دنیا کے تمام پاپی اور گناہگار لوگوں کے گناہوں کا دام صلیب کلوری پر اپنے لہو سے چکائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں آیا کہ خدمت لوں، بلکہ اس لیے کہ خدمت کروں اور اپنی جان بہتیروں کے بدلے فدیہ میں دوں۔ کسی وقت میں ایک گیت بھی سنا کرتا تھا اور گاتا بھی تھا، اور وہ گیت یہ کہ یسوع زندگی دا والی پت رب دا تے پھرے گلی گلی پاپیاں نو لبدا۔ اور میں اور آپ جنہوں نے نئی پیدائش کا تجربہ حاصل کیا ہے، ہم وہ گلیوں کے لوگ ہیں کہ اس نے اپنے لہو کا دیپ جلا کر تاریکی کے قبضے سے مجھے اور آپ کو چھڑایا، تاکہ اب اس تاریک دنیا میں مسیح خداوند کے لیے ایک شمع کے طور پر روشن ہوں۔ اس لیے تو مسیحا نے فرمایا تم دنیا کے نور ہو۔ ایک بار خداوند یسوع مسیح، ایک بار تو نہیں کئی بار، لیکن ان کئی ادوار میں سے ایک بار جب آپ یریحو سے ہو کر نکل رہے تھے، اگرچہ یریحو سے ہو کر نکلنے کے تعلق سے چند ایک واقعات ہیں، اور ان میں سے ایک واقعہ ایسا ہے جس پر آج مختصر طور پر بات کروں گا، اور یہ جانوں گا کہ خداوند نے میرے لیے اور آپ کے لیے آج کیا رکھا ہوا ہے۔ مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل مقدس، اور اس کا 10 باب ہے، اور اس کی 46 آیت سے لے کر 52 آیت تک، لیکن یہ حوالہ لمبا ہے، میں اس کو تلاوت نہیں کروں گا ماسوا ایک آیت کے، اس لیے بھی کہ آپ اس حوالے سے خوب واقف ہیں ایون بچپن سے ہی، اور کئی اس واقعے کو ڈرامائی انداز سے پیش کرنے کے لیے موویز بھی بنی ہیں، تاکہ نوجوان اور بچے انجیل پاک کے واقعات کو بہتر طریقہ سے جان سکیں۔ اس حوالے میں ایک ایسے شخص کا ذکر ہے جس کی بابت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ٹوٹلی اپنی آنکھوں سے نابینا شخص تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں، مجھے لگتا ہے کہ کبھی بھی یہ پھول اور یہ درخت اور یہ پودے نہیں دیکھے تھے۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ رنگ کیسے ہوتے ہیں۔ اپنے عزیز و اقربا کی آواز تو پہچانتا تھا، لیکن ان آنکھوں سے وہ ان کو دیکھ نہیں پا رہا تھا۔ شاید اپنے بچوں کو ہاتھ تو لگاتا تھا،
लेकिन उसके दिल में एक उमंग थी, एक आरज़ू थी, काश के मैं अपनी इन आंखों से अपने अजीजों अकरबा को देख सकूं। उसके दिल में एक आरज़ू थी और एक तड़प थी। न जाने उसने कई तबीब उस वक्त के एतबार से ढूंढ मारे होंगे, लेकिन नतीजा नदारद, कोई नतीजा नहीं निकला। और आज जब मैं आपके साथ इन बातों को शेयर करता हूं तो पॉसिबल है कि आप में से कई ऐसे हों जो फिजिकली या जिस्मानी एतबार से शुक्र है कि वो नाबीना नहीं है, और बहुत सारे रूहानी एतबार से भी बीना है, नाबीना नहीं है। जरूरी नहीं कि कुव्वत बसीरत से महरूम हो, कुव्वत बसारत से महरूम हो। पॉसिबल है कि कोई और मेरी और आपकी दिली आरज़ू जो खुदा की मर्जी के ऐन मुताबिक हो, जिसके लिए दुआएं भी करते रहे, जिसके लिए शायद हम हर मुमकिन तरीका से कोशा रहे, कुछ लोगों के कहने पर शायद हम गैर माबूदों के पास भी भागते रहे, मसीह को पाए बगैर की बात कर रहा हूं, और कुछ नतीजा ना निकला। और मैं ये भी जानता हूं जिनमें बीमारियां हो सकती हैं, दुख और तकालीफ हो सकते हैं, बहुत सारी दुआओं के जवाब ना मिलना यह भी हो सकता है, खानदानी हालात की बाबत कहा जा सकता है, ना इत्तफाकी का अंसर की बाबत बात की जा सकती है। ऐसे बहुत सारे अवामल हैं जिनमें से शायद किसी न किसी के आज हम शिकार हो। पॉसिबल है कि कोविड-19 के सबब से हम अपसेट हों और परेशान हों। पॉसिबल है कि किसी तरह की और बीमारी ने हमें जकड़ा हुआ है और समझ नहीं आती कि मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन याद कीजिए, यह शख्स जिसका नाम बरतमाई था, खुदावंद यीशु मसीह से वाकिफ नहीं था, वो खुदावंद यीशु मसीह को जानता नहीं था। और मुमकिन है कि आज हमारे जितने भी नाज़रीन हैं या सामईन में से कुछ ऐसे हैं जो इस हकीकत को नहीं जानते कि कोई है जो मेरा बार उठाने वाला है, कोई है जिसने कहा कि अपना सारा बोझ मुझे दे दो क्योंकि मैं तुम्हें संभालूंगा, अपनी सारी फिक्रें मुझे दे दो क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। नहीं जानते कि कोई है जिसने कहा, ऐ मेहनत उठाने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ ताकि मैं तुम्हें आराम दूं। और इस बात को याद रखने की जरूरत है कि इस बरतमाई को भी मसीह से कोई आशनाई नहीं थी, वाकफियत नहीं थी। लेकिन मेरी छठी सेंस यूं कहती है कि शायद कोई इंजील का गवाह इस शख्स से किसी वक्त मिला, क्योंकि ये राह के किनारे बैठा करता था। आपको मालूम है कि पतरस और यूहन्ना भी जब तीसरे पहर हैकल की तरफ गए तो उनको भी एक ऐसा शख्स मिला जो जन्म का लंगड़ा था। लेकिन अब वो उसको ये कहते हैं, जो कुछ तू चाहता है वो तो हमारे पास है नहीं, जो हमारे पास है वो तुम्हें दे देते। और मुमकिन है कि कोई इंजील का गवाह, कोई इंजील का मुबश्शिर इस शख्स से मिला हो और बरतमाई से कहा हो, बरतमाई तुम इतने ज्यादा नढाल ना हो, परेशान ना हो,
अगरचे तूने बड़ी कोशिशें की है, अपने घोड़े दौड़ाए जहां तक दौड़ा सकता था, लेकिन नतीजा जीरो निकला। कोई पॉजिटिव साइन तेरी सेहत में नजर नहीं आता। अभी तक तू अंधे का अंधा है, लेकिन बर्तमाई तुझे ये बात बता दी जाए कि कोशिश तूने बहुत की कि तू शिफा पा ले, बसारत पा ले, लेकिन बात बन नहीं पाई। बर्तमाई एक ऐसा शख्स है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है। अगर तू उस शख्स को मिल ले तो वो तुम्हारी कुव्वते बीनाई भी वापस लौट आएगा और तेरी जिंदगी की काया पलट देगा। बस तू उस यीशु को कहीं से मिल। लेकिन अब ये बेचारा सोचता हुआ होगा कि मैं यीशु को मिलूं तो कहां मिलूं, मैं तो कहीं बगैर सहारे के जा नहीं सकता, मोहताज हूं, मैं आगे बढ़ नहीं सकता, रास्ता नजर नहीं आता। वो यीशु कहां होगा मुझे तो कोई मालूम नहीं, यरीहो से नासरत तो बहुत दूर है, कहां मैं उसको ढूंढूं। दुनिया के लोग माबूदू को ढूंढते फिरते हैं, लेकिन बाइबल का खुदा वो खुदा है जो गुनहगार इंसान को और जरूरतमंद शख्स को ढूंढने के लिए अर्श से फर्श पर आ जाता है और कहता है, इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया। उसने मुझे ढूंढा, उसने आपको ढूंढा है। चुनाचे लगता है कि अब उसके ज़हन में यह बात तो थी कि मेरा इलाज एक ही शख्स के पास है जिसका नाम यीशु मसीह नासरी है, अगरचे मैं उसके पास जा नहीं सकता। लेकिन अब होता यह है कि यह तो नहीं जा सकता था, लेकिन मसीहा का गुजर उधर यरीहो में से होता है और अब वो जा रहे थे इस यरीहो से निकलकर। वहां राह के किनारे ये नाबीना अंधा फकीर बैठा हुआ था, शायद 2 वक्त की रोटी के लिए भीख मांगा करता था, वरना रास्ते के किनारे बैठने की कोई और तुक थी नहीं। यह भी पॉसिबल है कि थका हुआ बैठा हुआ हो, मुझे नहीं मालूम, यहां पर ऐसा नहीं लिखा, लेकिन ऐसी जगह पर था जहां पर लोग थे और उधर से खुदावंद यीशु मसीह और मसीह के शागिर्दों का गुजर होता है। एक आवाज सी आती है लोगों का, एक जमे गफीर जा रहा है और आवाज आती है, शोर शराबा है। शायद उस हुजूम में कई लोग जरूरतमंद थे और वो खुदावंद यीशु मसीह को पुकारते थे कि मेरी मदद कर, मेरी मदद कर। और इस नाबीना बर्तमाई ने शायद जिंदगी में पहली बार यह आवाज सुनी होगी कि कोई शख्स जा रहा है और लोगों की आवाजें आ रही हैं, वो उसको पुकारते हैं कि मेरी मदद कर। और शायद उसने पूछा हो कि भाई ये कौन जा रहा है, कौन है ये, मुझे बताओ। और बताया गया होगा कि ये यीशु मसीह नासरी है। और फिर बर्तमाई के सारे सेंस जाग गए होंगे और उस वक्त लगता है उसने अपनी वो गोदड़ी वगैरह, वो कपड़ा जिस पर वो बैठा करता था, उसको उधर ही छोड़ा और उठा और पुकारता है और कहता है, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, ए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। वो पुकारने लगा। बहुत सारे लोग वहां पर थे, उन्होंने उस शख्स को यह कहा, खबरदार, खामोश हो जाओ, शोर मत करो।
शायद बहुत सारे हम में से भी हैं जो रात के पहरों में दुआ करते हैं। गैर तो गैर, शायद अपने घर के लोग उस तौर पर एक्सेप्ट ना करते हूं, कबूल ना करते हूं, और वो कहते हूं कि इतने बजे उठकर शोर नहीं किया करो, हम डिस्टर्ब होते हैं। लोग डिस्टर्ब हो रहे थे इसके बुलाने पर, लेकिन यह जानता था कि मेरी जरूरत आज है, कल नहीं, और अगर यीशु आज चला गया तो उसके बाद शायद मेरे लिए कोई और मौका ना हो। आज मेरे लिए मौका है, सुनहरी मौका है, और मैं इस वक्त से फायदा उठाना चाहता हूं। यीशु को जाने नहीं दूंगा जब तक कि आज वो मुझे शिफा ना दे। पैदाइश 32 बाब में याकूब जब खुदा के एक फरिश्ता के साथ कुश्ती लड़ रहा था, मालूम हो गया कि ये कौन है जिसके साथ मैं कुश्ती लड़ रहा हूं, हार चुका था, और उस फरिश्ता से मुखातब होकर कहता है, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा जब तक कि तू मुझे ना बताए कि तू कौन है और तू मुझे बरकत ना दे। बरतमाई खुदावंद के हुजूर पुकार उठा, खुदावंद तू मुझे शिफा दे, मेरी आंखों में बीनाई आ जाए। और मसीहा पूछते हैं कि तू क्या चाहता है? और उस शख्स ने कहा, मैं यही चाहता हूं कि मैं बीना हो जाऊं। और जब उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मैं बीनाई चाहता हूं, तो उसने, यीशु ने मजीद देर नहीं की, कहा कि तू बीना हो जा। देर नहीं की, कहा कि बीना हो जा। मेरे अजीज भाई और मेरी बहन, मैं ये बताना चाहता हूं कि मसीह की पैरवी करना और मसीह के पीछे चलना, बा ईमान होकर जिंदगी गुजारना, खुदाबंद के नक्शे पाप पर चलना, इस बात की गारंटी नहीं है कि मेरी और आपकी जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं आएगा। मेरी और आपकी जिंदगी में दुख और तकलीफ होंगे। खुदावंद ने कहा कि पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, लेकिन जरूरी नहीं कि खुदावंद आज ही जवाब दे, और जरूरी नहीं कि खुदा मेरी और आपकी मर्जी के मुताबिक जवाब दे। वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो हमारे लिए भला है और अपने ठहराए हुए वक्त पर जो उसका है वो हमें जवाब देगा। और जरूरी नहीं कि जैसा जवाब मैं और आप चाहते हैं बाएन वैसा ही खुदावंद हमें जवाब दे। और बाज़ औक़ात वो जवाब देता है और कहता है, नो मेरे बेटे, लेकिन हम कट्टे वाली जिद लगाकर बैठे रहते हैं और हम उसकी नो वाली आवाज सुनना नहीं चाहते, हम हां वाली सुनना चाहते हैं। यानी एक लिहाज से उसको मनवा कर छड़ना चाहते हैं। यह दुरुस्त नहीं है। ईमानदारों की जिंदगी में दुख और तकलीफ जरूर है। मसीह ने यह नहीं कहा कि मेरे पीछे आने में तुम्हारा जीवन आसान हो जाएगा, नो, लेकिन यह उसने जरूर वादा किया कि जो तुम्हारी मंजिल है वो आसान हो जाएगी। यह उसने जरूर कहा। इन दुनिया के दुखों में, तूफानों में और तकलीफ में और मुसीबतों में वो हमारे साथ है। उसको कहने की जरूरत नहीं, खुदावंद आ और मेरे साथ हो, नो। कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो हमारे साथ ही नहीं, हमारे दिलों में, हमारे जीवन में है। और आज इस बरतमाई की तरह उस खुदावंद को पुकारने की जरूरत है। खुदावंद, इन तमाम सिचुएशंस में, इन तमाम हालात में जिनमें मैं घिरा हुआ हूं या घिरी हुई हूं, खा वो कोविड-19 है या कोई और प्रॉब्लम है या कोई और दुख या तकलीफ है या फिजिकली कोई प्रॉब्लम है या स्पिरिचुअली कोई प्रॉब्लम है या गुनाह की लानत के शिकंजे में फंसे हुए हैं या नशे की लानत है, बड़ी कोशिशों के बावजूद
अगर अभी तक रिहाई नहीं पाए तो खुदाबंद को सिद्के दिल से पुकारने की जरूरत है। आज वो घड़ी है, इसके बाद शायद दूसरा मौका ना मिले। आज इस वक्त से बरतमाई की तरह और जक्काई की तरह और पतरस की तरह फायदा उठाने की जरूरत है। आज हमारा है, कल हमारा नहीं है। खुदाबंद को पुकारने की जरूरत है। ऐ खुदाबंद तू मेरे जीवन में आ और मुझे तब्दील कर। और फिर क्या हुआ जब खुदाबंद ने उस शख्स की जिंदगी में इनकलाब पैदा किया, उसके बाद जिस कपड़े पर वो बैठा हुआ था उसको फेंक दिया और खुदाबंद यीशु मसीह के पीछे हो चला। बरसों पहले मैंने एक बात सुनी और वो शुमाली इलाका जात की थी, पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, कि एक ऐसा शख्स जो बरसों से हर रोज सड़क के किनारे आकर बैठा करता था भीख मांगने के लिए, आखिरकार मौत ने उसके दरवाजे पर भी आकर दस्तक दी, मर गया। और बाद इस मर्ग वही कपड़ा, वही गद्दी सी जिसको वो लेकर हर रोज जाता था, सड़क के किनारे जिस पर बैठा करता था, वही नहीं बल्कि कई और जगहों से, और खासकर ये वाली गद्दी नोटों से और पैसों से भरी हुई थी। वो सब कुछ किसका हुआ? छोड़कर चला गया। लेकिन यह बरतमाई मुमकिन है कि इसकी गद्दी में भी जिस पर बैठा करता हुआ हो, इसमें भी कुछ हुआ हो। मैं नहीं जानता, मैं वहां था नहीं, इसलिए मुझे पता नहीं। लेकिन एक बात मैं कहूंगा, यह उसका माजी था जो उसके साथ साथ रहता था। लेकिन आज जब यीशु ने उसको रूहानी तौर पर बीनाई बख्श दी तो उसने उस सारी गद्दी को, उस गोदड़ी को, उस कपड़े को फेंक दिया और फिर खुदाबंद यीशु मसीह के पीछे हो लिया। मेरे अजीजों, आए हम अपने खुदाबंद के पीछे हो चले, उसको पुकारें, क्योंकि वो हमारी दरखास्तों और मनाजात को सुनने वाला है। मेरी और आपकी जिंदगी में वो मौजज़ा करना चाहता है और उस मौजज़े के होने के लिए इंतजार फरमाए। वो यूं भी मौजज़ा कर सकता है, बट इट कैन टेक टाइम एज वेल। और इसके साथ साथ जब वो हमारी जिंदगी में काम करता है, और अगर नहीं भी करे तो देखना यह है वो कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं, कौन से ऐसे हालात हैं जिनको मुझे हमेशा के लिए बाय बाय कहना है और उनको छोड़ना है, फेंकना है, और फिर खुदावंद यीशु मसीह के पीछे हो चलना है, ताकि वो मेरी और आपकी जिंदगी में उस लानत की जगह बरकत भरे और उस गंदगी की जगह आप रास्तबाजी मेरे और आपके जीवन में लाए। जरूर है कि हम जैसे ही हालात में हों खुदाबंद को पुकारें ताकि वो हमारी मदद करे और हमारी जिंदगी में एक अजीब और अजीम इनकलाब लाए। इस घड़ी को अपने हाथों से जाने ना दीजिए। खुदाबंद अपने इस जिंदगी बख्श कलाम के वसीला से आज मुझे भी और आपको भी अपनी बरकतों से नवाजे। आपकी तवज्जो का बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू।